Hello students, I am Dr. Ashish Kumar Suri and I am the subject matter expert of management. Today we will start a very important topic from Unit 8, which is Business Statistics and Operations Management of NT-UGC NET Management. The name of the topic is Probability Distribution. You can expect 2 to 3 questions from this topic, as each question is of 1 mark, so the expected marks will be 2 to 3. You can expect numericals, conceptual questions, and also match the following questions from this topic, so the difficulty level will be moderate to difficult. So we will start the topic. There are 4 probability distributions: binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, and exponential distribution. We will start with binomial distribution. Binomial distribution, it is also known as Bernoulli process. It is a random process which has the following characteristics. The process is performed under the same conditions for a fixed and finite number of trials. So the conditions are same and we are performing the trial for a fixed and finite number of times. Each trial is independent of other trials, which means that the probability of an outcome for any particular trial is not influenced by the outcome of other trials. Each trial has 2 mutually possible outcomes such as success or failure, good or defective, yes or no, hit or miss, like that. The outcome are usually called success एंड फेलियर फॉर कन्वीनियंस. हम यहाँ पर यूजुअली आउटकम्स को सक्सेस एंड फेलियर से ही डिनोट करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज पी, इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, एंड so the probability of failure q also remains constant, which is 1 minus p. So we will understand it with the help of an example. Suppose we are tossing a coin. हम एक coin को toss कर रहे हैं and say we are tossing the coin for 10 times. So the n will be 10. When we are tossing the coin for the first time, there could be only 2 outcomes, either head or either a tail, and the probability of both will be 1 by 2. क्योंकि 2 ही outcomes हैं, so हर outcome का probability 1 by 2 होगा. So for example, हमने success माना tail को. अगर हमने coin को toss किया और हमें tail मिला, तो हमने उसको success बोला. So the probability P of success, it is 1 by 2. And also the probability q, that is the probability of failure, it is also 1 by 2. So we are performing the trial for n number of times and the probability of success in each trial will be 1 by 2, and also the probability of failure in each trial here is 1 by 2. So ये जो probability है p success की, ये हर trial में same होगी. जब आपने coin को first time toss किया तब भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 थी. जब आप सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तब भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 ही होगी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. नाउ द जनरल मॉडल और द एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज. fx equals to ncx p to the power x q to the power n minus x. Here n is the number of trials, p is the probability of success in each trial, and x is the number of success in 10 trials. तो जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कॉइन को टॉस करने का, तो हम कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर रहे थे, तो यहाँ पर n हो गया 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या देखा था 1/2. नाउ x, the number of success in n trials. So for example, अगर मैंने पूछा कि अगर हमें किसी कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एग्जैक्टली 3 टाइम्स टेल मिलेगा, एग्जैक्टली 3 टाइम्स टेल मिलेगा. तो यहां पर x की वैल्यू हो गई 3. सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 by 2 एंड देयरफॉर फेलियर का प्रोबेबिलिटी q वो हो गया 1 by 2. So what is the probability of getting exactly 3 tails while tossing a coin for 10 times? So we want p x equals to 3. So it will be 10 C 3
1/2, that is p to the power 3, and 1/2, that means q to the power n minus x, that means 10 minus 3, so q to the power 7. Now आपको सॉल्व करना आना चाहिए NCX को. NCX is factorial n divided by factorial x multiply by n minus x factorial. Now what do we mean by factorial? For example, factorial 5. Factorial 5 means 5 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. So factorial 5 will be 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1. So in this way we can solve the questions. Now the mean and variance of binomial distribution. The mean mu of a binomial distribution is n multiply by p. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. So mean of binomial distribution is n multiply by p. Here n is same number of trials and p is the probability of success in single trial. The variance of binomial distribution. Variance is denoted by sigma square, where the sigma is standard deviation. So the variance of binomial distribution is np multiplied by q. np into q. This is the variance of बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मालूम करना हो तो सिग्मा विल बी, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सिग्मा विल बी रूट एन पी क्यू. ओके, नाउ रिमेंबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मे बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली स्क्यूड. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है एंड पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है. नाउ स्क्यूनेस मींस डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्रिसिटी. सो पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. सो द सेंट्रल वैल्यू विल बी द मीन वैल्यू, दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी द मॉडल वैल्यू, एंड in between mode and mean we have median. Okay, this is positively skewed data. Positively skewed. Now negatively skewed data, the graph will be, it will be something like this. So here will be the mean, this maximum value will be the modal value, and in between them we have median. So binomial distribution, it may be negatively or positively skewed. ये आपको ध्यान रखना है. इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पर. द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40. मीन मीन्स n into p. So mu n into p, इसका वैल्यू हमें गिवन है 40. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट np into q. ओके, कैलकुलेट np एंड q. हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू गिवन है और हमें np और q का वैल्यू मालूम करना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 6 गिवन है, सो 6 इक्वल्स टू अंडर रूट npq. अब देखिए n इंटू p का वैल्यू तो हमें 40 गिवन है, तो इट इज 40 मल्टीप्लाई बाय q. हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, सो 36 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय q. तो यहां से हमें q का वैल्यू मिला 36 डिवाइडेड बाय 40. यहां से हम q का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9. ओके, नाउ p हमें पता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट इज p प्लस q इज 1. तो q हमने कैलकुलेट कर लिया, p विल बी 1 माइनस q. दिस मीन्स 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1. तो हमें n का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, हमें p का भी वैल्यू मिल गया. अब हमें कैलकुलेट करना है n. सो नाउ n इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय p. यहां से हम n का वैल्यू लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाय p. सो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय
0.1, तो n का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से 400. सो वी हैव कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज. n is calculated as 400, p here is 0.1 and q is 0.9. Remember, sum of probabilities is always 1. ये आपको काम आएगा p और q का वैल्यू कैलकुलेट करने में. अगर एक का वैल्यू गिवन है, हम दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं. Now second example, suppose that half of the population of a town are consumers of rice. 100 investigators are appointed to find out its truth. Each investigator interviewed 10 individuals. How many investigators do you expect to report that 3 or less of the people interviewed are consumers of rice? हमें given है कि एक टाउन का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूमर ऑफ राइस है. 100 इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट हुए. इनमें से ईच इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू 10 इंडिविजुअल. हर इन्वेस्टिगेटर ने 10 इंडिविजुअल्स को इंटरव्यू किया. इनमें से कितने इन्वेस्टिगेटर ये रिपोर्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 3 और लेस, 3 या 3 से कम पीपल इंटरव्यूड आर कंज्यूमर ऑफ राइस. अब क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज कंज्यूमर ऑफ राइस, सो वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, दैट एन इंडिविजुअल इंटरव्यूड इज अ कंज्यूमर ऑफ राइस. एक इंडिविजुअल जिसका हमने इंटरव्यू लिया है वो राइस का कंज्यूमर होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज कंज्यूमर ऑफ राइस. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज एन इंडिविजुअल इंटरव्यूड इज अ कंज्यूमर ऑफ राइस, विल बी 1/2, क्योंकि हाफ पॉपुलेशन राइस की कंज्यूमर है. सो वी कैन से दैट Q means probability of failure, that is an individual interviewed is not a consumer of rice. It will be 1 minus 1/2, so it will also be 1/2 in this case. Now हम कितने इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? Each investigator interviewed 10 individual. हर इन्वेस्टिगेटर 10 इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है. तो यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया यहां पर 10. ओके, तो हमें क्या मालूम करना है यहां पर, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स डू यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 और लेस ऑफ द पीपल. नाउ 3 और लेस मींस या तो 3 या 2 या 1 या 0. कितने इन्वेस्टिगेटर्स ये रिपोर्ट करेंगे कि 3, 2, 1 या 0 इंडिविजुअल राइस के कंज्यूमर्स थे. सो दैट मीन्स हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है p x लेस देन इक्वल्स टू 3. 3 हमसे पूछा है 3 और लेस, सो इट विल बी x लेस देन इक्वल्स टू 3. सो इट विल बी p x लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब p3 प्लस p2 प्लस p1 प्लस p0. ये हमें मालूम करना है. ओके, सो p3 कितना होगा, 10c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 7 प्लस p2 10c2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 8 प्लस p1 यानी कि 10c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 9 प्लस p0 10c0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 10. अब आप देखिए हर टर्म में 1/2 की पावर 3 और 7, 3 प्लस 7 10 हो गया. यहाँ पर सबकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. यहाँ पर भी 1/2 की पावर 2 प्लस 8 10, 1 प्लस 9 10, 0 प्लस 10 10. तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/2 की पावर 10. तो हमारे पास क्या बच गया, 10c3 प्लस 10c2 प्लस 10c1 प्लस 10c0. इनका आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 10
प्लस 45 प्लस 120, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। ये वैल्यूज मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखी हैं। 10C0 का वैल्यू होगा 1, 10C1 का वैल्यू होगा 10, 10C2 का वैल्यू मिलेगा 45 एंड 10C3 का वैल्यू मिलेगा 120। तो यहां से हमें इन सबको हम ऐड करेंगे तो मिला 1/2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 176। नाउ 1/2 की पावर 10, तो 1 की पावर 10 तो 1 हो गया और 2 की पावर 10 हो गया 1024, तो हमें मिला 176/1024। अब हमें क्या बताना था, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स डू यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 और लेस ऑफ द पीपल इंटरव्यूड अ कंज्यूमर ऑफ राइस। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमें परसेंटेज की टर्म्स में इन्वेस्टिगेटर्स मिल जाएंगे। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास वैल्यू आएगा 17%। So this means that 17% investigators will report that 3 or less of the people interviewed are consumers of rice, approximately 17. So this is the solution of this question. Now second is Poisson distribution. The characteristics of Poisson distribution, these are as follows. The occurrence of the event is independent. That means that the outcome of one event will not affect the outcome of another event in a given interval of time. Theoretically, an infinite number of occurrence of event must be possible in the interval. There are large number of occurrence of event is possible in the given time interval. Okay. The probability of single occurrence of the event in a given trial is proportional to the length of the interval. जितना interval का length ज्यादा होगा उतना ही single occurrence का probability भी ज्यादा होगा. In an infinitesimal, extremely small portion of interval, the probability of 2 or more occurrence of the event is negligible. अगर हमारे पास में एक बहुत small portion of time है तो 2 या 2 से ज्यादा event का अकर होने का probability negligible होगा, 0 के approximate होगा. Now the function of probability distribution is given by Px equals to e to the power minus m to the power x upon factorial x. Here m is the parameter of the Poisson distribution and its value is m equals to n multiplied by p. Again p is the probability of success and n is the number of trials. It is the average number of occurrence of random event and x is the number of occurrence of the random event and e is constant whose value is 2.7183. Now the mean and variance of Poisson distribution, this is important. The mean of Poisson distribution mu is n multiplied by p and its variance is also n multiplied by p. So in Poisson distribution mean and variance both are equal. इस पर बेस क्वेश्चन आ जाता है. Poisson distribution में mean और variance दोनों ही equal होते हैं और इनका वैल्यू होता है n multiplied by p. Okay. Now Poisson distribution is positively skewed. Okay, and is completely defined by the parameter m. एक ही पैरामीटर है Poisson distribution का, वो है m. और Poisson distribution पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. अभी हमने देखा पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ कैसे होते हैं. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली या पॉजिटिवली दोनों तरफ हो सकता है स्क्यूड, लेकिन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन केवल पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच केम इन UGC NET June 19 एग्जामिनेशन. For a situation where 100 misprints are distributed randomly throughout the 100 pages of a book, the probability that a page selected at random will contain at most one misprint. So हमें ये मालूम करना है कि अगर हम एक पेज सेलेक्ट करें रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसमें एक मिसप्रिंट होगा. ओके, नाउ कैसे सॉल्व करना है इसको. For a situation where 100 misprints are distributed randomly throughout the 100 pages. अब हम 100 में से अगर किसी एक पेज को सेलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पेज पे मिसप्रिंट होगा. तो P will be 1/100. So it will be 0.01. नाउ कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है. आप देखिए यहाँ पर P सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है. सो इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। ओके, सो P विल बी 0.01। नाउ हमें मालूम करना है M विल बी N मल्टीप्लाई बाय P। तो N कितने मिसप्रिंट्स हैं टोटल? 100 मिसप्रिंट्स हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो M हमें यहाँ पे मिल गया 1। ओके, सो हमें क्या मालूम करना है? एटमोस्ट 1 मिसप्रिंट। नाउ एटमोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1। सो Px लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हमें यहां पर मालूम करना है। सो Px लेस देन इक्वल्स टू 1 विल बी P1 प्लस P0। हमें P1 प्लस P0 मालूम करना है। ओके, अब हमने देखा था कि Px का वैल्यू क्या था? e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ओके, तो P1 क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस m, यानी कि e टू दी पावर m का वैल्यू कितना है? -1 मल्टीप्लाई बाय m टू दी पावर x, 1 टू दी पावर x कितना है? 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस e टू दी पावर माइनस m, यानी कि e टू दी पावर अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय m, 1 टू दी पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। ओके, तो यहां से हम e टू दी पावर -1 कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर -1 को हम कॉमन ले लेंगे। नाउ 1 टू दी पावर 1 इज 1 और 1 टू दी पावर 0 इट इज ऑल्सो 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होगा। ओके, नाउ 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ओनली। ओके, तो फैक्टोरियल 1 कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है? फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो ये भी 1 अपॉन 1 हो गया। तो दिस इज 1 प्लस 1 2 e टू दी पावर माइनस m, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.736। So the answer is 0.736. That means the probability that a page selected at random will contain at most one misprint will be 0.736. और स्टूडेंट्स जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, तो आपका आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आया तो आपने गलती की है, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें। Now third is normal distribution. It was discovered by De Moivre in 1773. It is an approximate to binomial distribution. It is an approximate to binomial distribution. ये binomial distribution का एक approximation है। A random variable x is said to have a normal distribution with parameters mu and sigma square. तो binomial normal distribution के parameters क्या होंगे? Mu and sigma square. That is mean and variance. So if the density of the function is given by this function, so ये आपका normal distribution का function है, और इसका जो interval है, the interval is, that means value of x, its interval is minus infinite to infinite. The interval of normal distribution is from minus infinite to plus infinite. Okay, यहाँ पर पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 3.141। ओके, और मीन जो है वो मीन है, म्यू इज द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस। तो अभी हमने नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ देखे थे। नाउ इस ग्राफ को देख के आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को देख के कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, ना तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है ना ही पॉजिटिवली स्क्यूड है। सिमेट्रिकल ग्राफ का मतलब अगर आप उसको इस सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस के थ्रू फोल्ड करेंगे, इन दोनों को अगर आप इस लाइन के थ्रू अगर हम इस ग्राफ को फोल्ड करेंगे, सो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन विल ओवरलैप ईच अदर, सो सच अ ग्राफ इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता है। इट इज
ऑल्सो नोन एज बेल शेप्ड कर्व, इसको हम बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं ना। जो आपने भी फॉर्मूला देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जो क्वांटिटी है n अपॉन सिग्मा इंटू रूट 2 पाई, तो दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वैल्यू एट वाई एक्सिस। ओके, सो इस पीक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, इस पीक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस पे, दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा n अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई। ओके, विच विल अकर एट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहां पर अकर होगा, जहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यू होगा। ओके, नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, तो हमने अभी देखा इसमें स्क्यूनेस 0 होगा। ओके, तो ये सिमेट्रिकल कर्व है। द हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम एट द मीन, मीन वैल्यू पे इसका हाइट मैक्सिमम होगा, वो भी हमने देखा, और उसका वैल्यू क्या होगा वो भी हमने देखा, इसका वैल्यू n अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई होगा। देयर इज वन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कर्व विच अकर्स एट द मीन, तो मैं यहाँ पे दोबारा एक बार ग्राफ बना देता हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, तो ये आपका मीन वैल्यू है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही पीक पॉइंट है, दिस इज द ओनली पीक पॉइंट ऑफ द ग्राफ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल। देयर इज मैक्सिमम वन पॉइंट ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच अकर्स एट द मीन, द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइंस एज वी गो इन ईदर डायरेक्शन ऑफ द मीन, आप मीन के लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो जो कर्व है उसका हाइट डिक्लाइन होगा। ओके, द नॉर्मल कर्व इज यूनिमोडल, दैट इज इट हैज ओनली वन मोड, आप देख सकते हैं कि इसका एक ही पीक पॉइंट है, तो ये यूनिमोडल है। The variable distributed according to the normal curve is a continuous one. Normal distribution continuous distribution का example है। Okay, first and third quartiles are equidistant from the mean, ये आपको ध्यान रखनी है properties। Mean deviation about the mean is 4 upon 5 multiplied by sigma, mean deviation about mean, that is MDX bar, mean deviation about mean is 4 by 5 multiplied by sigma। ओके, और 0.7979 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन प्लस माइनस सिग्मा, मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा एंड मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा कवर्स 68.27, 95.45 एंड 99.73% एरिया रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर ये मीन वैल्यू है और इसमें अगर हम सिग्मा को माइनस कर दें तो इट विल बी मीन माइनस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, दिस विल बी म्यू प्लस सिग्मा। तो ये जो एरिया होगा ये कितना होगा, इसमें अराउंड 68.27% वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। सिमिलरली अगर हम मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा काउंट करें, ओके, तो इट विल कवर 95.45% वैल्यूज एंड मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा। ओके, तो अराउंड दिस विल बी मीन माइनस 3 सिग्मा एंड हियर ऑल्सो अगर हम इस कर्व को एक्सटेंड करें तो दिस विल बी मीन प्लस 3 सिग्मा। तो ये जो आपका एरिया हो जाएगा कंप्लीट, दिस विल कवर अराउंड 99.73% वैल्यूज और द टोटल एरिया। नाउ दिस आर द रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n is large and the probability p of the occurrence of an event is close to 0। हमने देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होता है, क्लोज टू 0। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, एंड द नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी लार्ज, दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड नीदर p और q इज वेरी स्मॉल। लास्ट वी हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। A continuous random variable x is said to have an exponential distribution if its probability density function is given by px equals to lambda e to the power minus lambda if x varies from 0 to infinite and lambda is greater than 0, otherwise its value is 0. So we can see that the limits of exponential distribution is from 0 to infinite. It is from 0 to infinite. Okay, and lambda must be greater than 0. Here lambda is the
perimeter of exponential distribution. Now you have to remember the exponential variable takes values over an infinite range. Lambda should be a positive real number. हमने देखा lambda का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए. By giving different values of lambda, different exponential distribution can be specified. हम lambda की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग कर्व मिलेंगे, ग्राफ मिलेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के. मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 अपॉन lambda, while its variance is 1 upon lambda square. Okay. Now the graph of exponential distribution is something like this. So its decline from right to left. It declines from right to left. Now जनवरी 17 में एक क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग. ओके, सो हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. तो हम देखते हैं कौन सा मैच ठीक बैठता है. द पेरीमीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर n एंड p. पेरीमीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर n एंड p. हमने देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पेरीमीटर्स हैं वो n एंड p होते हैं. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल. मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल. तो हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं. ओके, और आपका फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द सेंटर लोकेशन एंड स्प्रेड रेस्पेक्टिवली. हमने देखा था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पीक पॉइंट हमें मीन की वैल्यू से मालूम पड़ता है, सेंटर लोकेशन. द ग्राफ ऑफ द probability density function of the distribution slopes downward to right from its maximum mean value. अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम दिस मैक्सिमम वैल्यू. तो डी का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. तो फर्स्ट का सही आंसर है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, बी का 1, सी का 4th एंड डी का 2nd. तो आप देखें ऑप्शंस में, कोड्स में, तो 4th विल बी दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT, JEM, CSIR, नेट एंड NTGC नेट का, तो आप एड्यूंगल का स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं. आप अपने गूगल प्ले स्टोर से एड्यूंगल का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं